Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English 12th poem Why English is so hard. So why English is so hard means कि English इतनी hard क्यों है. Now first I will read it. We'll begin with a box and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of the house is houses, not highs. If the plural of man is always called men, what should why shouldn't the plural of pen is called pen? And I speak of a foot and you show me your feet, but I give you a boot. Would a pair be called beat? That one may be that and three may be those. Yet the plural of had would never be hose. Well, begin with the box and the plural is boxes. So well begin with the box means कि हम start करते हैं box से and the plural is boxes means अगर बहुत सारे box रहेंगे तो उसका plural क्या आता है boxes. But the plural of ox should be oxen not oxes. लेकिन plural ox का क्या रहता है should be oxen not oxes. boxes का boxes रहता है ना. एक अगर सिंगल बॉक्स रहेगा तो बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स रहेंगे तो बॉक्सेस. बट एक अगर ऑक्स रहा तो ऑक्स, लेकिन बहुत सारे ऑक्स रहेंगे तो ऑक्सेस नहीं. इट इज़ कॉल्ड ऑक्सन. ओके. नाउ नेक्स्ट, यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ वोल लॉट ऑफ माइस. यू मे फाइंड अ लोन माउस मीन्स कि आप एक अकेले माउस को अगर फाइंड करो, या फिर वोल लॉट ऑफ माइस, या फिर पूरे बहुत सारे माइस. बट द प्लूरल ऑफ द हाउस इज हाउसेज नॉट हाइस. लेकिन एक सिंगल को माउस रहता है, बहुत सारे माइस. वैसी लेकिन एक हाउस रहता है हाउस. एक हाउस को हम क्या बोलते हैं, सिंगल हाउस को हाउस. लेकिन बहुत सारे हाउस को हम हाउसेस बोलते हैं, राइट. हाइस नहीं बोलते. सो बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेज नॉट हाइस. हम बहुत सारे हाउसेस को सो मैनी हाउसेस बोलते हैं, राइट. सो मैनी हाउसेस, बट वी कांट से हाइस. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pen be called pen? So plural of man is always called men, right. Plural of man का क्या रहता है, men. Why shouldn't the plural of pen is be called pen? So pen को हम पेन को पेन क्यों नहीं बोल सकते. दिस इज पेन, राइट. तो पेन को आप प्लूरल हम पेन क्यों नहीं बोल सकते. ही इज आस्किंग दैट. नाउ नेक्स्ट, एंड आई स्पीक ऑफ अ फूट and you show me your feet, but I give you a boot. Would a pair be called a beat? Means and I speak of a foot. अब वो किसके बारे में बोल रहा है, अपने फुट के. and you show me your feet, और उसे हमने क्या दिखाया, फीट. but I give you a boot. अब उसने रिटर्न में क्या दिया, but I give you a boot मीन्स उसने हमें बूट दिया. would a pair be called beat? तो हम उसके जो पैर है, अब सिंगल बूट को हम बूट कहते हैं, डबल पैर को बूट्स बोलेंगे, लेकिन हम बीट बोलेंगे क्या, नहीं, राइट. So would a pair be called paid? No, right. Now last one. That one may be that and three may be those. अब one को हम that बोल सकते हैं and three को those. Yet the plural of hat would never be hose. एक hat रहता है तो hat बोलते हैं, लेकिन क्या group of hat अगर 3-4 hat रहेगी तो हम उसे क्या hose कहते हैं, no, right. Okay. So this is why English is so hard. Okay. The masculine pronouns are he, his and him. But imagine the feminine she, she's and shim. So the masculine means जो male रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, he, his and him. But imagine the feminine means female, right. she, she's and shim means हम she, ladies को हम she बोलते हैं, she. लेकिन she's और shim बोलते हैं क्या, नहीं. लेकिन gents को he, his and him. Okay. So our English, I think you will all agree, it is the trickiest language you ever did see. So our English, इसलिए हमारी English कैसी है, I think you will ever agree, आप agree करोगे
इज़ द ट्रिकेस्ट लैंग्वेज, ये बहुत ट्रिक वाली लैंग्वेज है। यू एवर डिड सी, अगर आपने कभी भी कोई और लैंग्वेज देखे हो, ये सबसे ट्रिकेस्ट लैंग्वेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, 13 chapter, Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court. Okay, this is the story of Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court. Means काजी के कोर्ट में कौन गया था? सुल्तान गियासुद्दीन. Hundreds of years ago in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah ruled the land. So hundreds of years ago means बहुत 100 साल पहले in the eastern province of Bengal, ईस्टर्न साइड में बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन आज़म शाह रूल द लैंड. तो वहाँ पे एक सुल्तान गियासुद्दीन आज़म शाह नाम के किंग थे जो वो लैंड पे रूल करते थे. हिज कैपिटल वॉज सोनार गांव. अभी वो जहाँ पे रूल करते थे वहाँ का कैपिटल क्या था? सोनार गांव. सुल्तान गियासुद्दीन वॉज अ गुड रूलर. अब ये जो सुल्तान थे वो कैसे रूलर थे? गुड रूलर थे, बहुत अच्छे रूलर थे. ही रूल्ड वाइसली एंड वेल. तो वो कैसे रूल करते थे? बहुत वाइसली और वेल. ही रिस्पेक्ट मैन ऑफ लर्निंग. ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ. सो ही रिस्पेक्ट मैन फॉर लर्निंग मीन्स वो सबकी रिस्पेक्ट करना. एंड ही हैड अ डीप रिगार्ड ऑफ फॉर लॉ मीन्स वो लॉ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ रहता था उस पर भी वो डीप रिगार्ड करते थे. मीन्स अपने जो भी लॉ रहते थे उसको बराबर प्रॉपर फॉलो करते थे. One day, while the Sultan was practicing with his bow and arrows, he accidentally wounded the only son of a poor widow. So one day means एक दिन, while the Sultan was practicing means जब सुल्तान प्रैक्टिस कर रहे थे, with his bow and arrow means अपने जो तीर कमान से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, he accidentally wounded the only son of the poor widow. तो वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो he accidentally means गलती से उनसे क्या हो गया, वो जो ही एक्सीडेंटली वॉन्डेड मीन्स उनने गलती से एक लड़के को, द ओनली सन ऑफ द पुअर विडो. ना पुअर विडो मीन्स व्हाट? एक पुअर गरीब विधवा के बेटे को मार दिए. द वॉन्डेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव. तो जिसको वो उन्होंने गलती से मारे वो डिड नॉट सर्वाइव मीन्स वो मर गया, नहीं जी पाया. वीपिंग एंड वेलिंग द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. सो वीपिंग एंड वेलिंग मीन्स वो बहुत रो, मतलब एकदम रो धोकर, द पुअर विडो, जो वो पुअर विडो थी, वो गरीब विधवा थी. विडो मीन्स विधवा, राइट. वेंट टू द काजी, तो वो किसके पास में गए? काजी के पास में. एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, और उसने क्या कहा? जाके जो भी चीज़ हुई वो सब जाके उन्हें बताई. द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन. सो काजी भी कैसे थे? वो भी ऑनेस्ट थे मीन्स सच्चे मैन थे एकदम. ही सेंट एन ऑफिसर टू समॉन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. सो ही सेंट एन ऑफिसर, तो उन्होंने क्या किया? काजी ने सेंट एन ऑफिसर को, अपने एक ऑफिसर को भेजे टू समॉन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. सो व्हाट इज मीन बाय सुमॉन? तो उन्होंने क्या किया? एक मतलब पूरा एप्लीकेशन बनाए कि आपको कोर्ट आना है. किसके लिए? काजी ने किसे भेजे? सुल्तान को एक वो भेजे लेटर कि आपको कोर्ट में आना है. When the officer reached to the palace, तो जब वो काजी ने वो ऑफिसर को भेजे पैलेस में, the guard stopped him and inquired about his business. तो जो काजी ने ऑफिसर को भेजे पैलेस में, तो वहाँ के जो किंग के सुल्तान गियासुद्दीन का जो पैलेस था, वहाँ के गार्ड्स ने क्या करे? उन्हें आने नहीं दिया. उनको पूछने लगे, इंक्वायर करने लगे. When they learned that he had come to serve summons on the Sultan, they were shocked. तो जब उन्हें पता चला कि वो सुमॉन्स सुल्तान के लिए लाए, तो वो लोग पूरे जो गार्ड्स थे वो शॉक हो गए. दे रिफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस. वो लोग ने क्या करे? वो ऑफिसर को अंदर जाने नहीं दिए. द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स. द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस.
बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द सुमन। सो अब जो वो ऑफिसर था वो क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो गार्ड्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसे वो सुल्तान गियाजुद्दीन को वो सुमन वो एप्लीकेशन देना था कि आपको कोर्ट में आना है। द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक, ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ। अब काजी वो रिटर्न सुमन तो लेके नहीं जा सकता था, जो काजी ने ऑफिसर को दिया है वो ऑफिसर वो सुमन रिटर्न लेके नहीं जा सकता था, तो उसे कोई ना कोई रीज़न ढूंढना ही था। रीचिंग टू सुल्तान समहाउ, कैसे भी उसे सुल्तान तक का वो पहुंचाना ही था। व्हाट कुड ही डू नाउ, अब वो ऑफिसर क्या कर सकता है। ही थॉट एंड थॉट, तो उसने वो ऑफिसर ने बहुत सोचा, थॉट एंड थॉट मीन सोचा सोचा। एट लास्ट ही बिगेन टू साउंड द अजान, द कॉल फॉर द प्रेयर, लाउडली जस्ट आउटसाइड द पैलेस। तो एट लास्ट उसने बहुत सोचने के बाद में क्या करा, उसने अजान देने लगा बहुत ज़ोर से, जस्ट आउटसाइड द पैलेस। कहाँ पे अजान देने लगा वो, आउटसाइड द पैलेस मीन्स पैलेस के बाहर ही। इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर व्हेन द सुल्तान heard द लाउड अल्टीमेटली कॉल, ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज। अब वो जब ऑफिसर बाहर बैठ के पैलेस के अजान देने लगा, तो वो अजान का टाइम नहीं था, कोई नमाज का टाइम नहीं था तभी वो, तो वो जो सुल्तान है, सुल्तान ने आवाज़ सुनी अंदर और वो बहुत सरप्राइज हो गए। He ordered that the man giving the call should be brought before him immediately. So he ordered, so सुल्तान ने फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर करे कि वो जो बाहर और अजान दे रहा है उसे आप क्या करो, इमीडिएटली मेरे पास लेकर आओ। His soldier rushed out of the palace gates, caught the officer and took him टू द सुल्तान विद इन मोमेंट। सो उसके सुल्तान के फिर सोल्जर्स बाहर आए, वो अजान जो ऑफिसर दे रहे थे उन्हें कट करे, पकड़े और विद इन अ मोमेंट मतलब बहुत जल्दी से क्या करे, सुल्तान के पास में लेके गए। व्हेन द ऑफिसर नेल्ड बिफोर द सुल्तान ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। सो जब ऑफिसर को सुल्तान के पास में लेके गए तो सुल्तान बहुत डर रहा था, फियर मीन्स बहुत डर रहा था। बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन वाई ही हैड गिवन द कॉल ऑफ फॉर अजान। लेकिन फिर उसने क्या करा, उसने एक्सप्लेन करा कि मैं अजान बाहर क्यों दे रहा था, क्योंकि वो लोग गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे थे राइट ऑफिसर को, इसीलिए वो ऑफिसर अजान दे रहा था। देन वाइट विथ शेकिंग हैंड ही गेव द सुमॉन्स टू द सुल्तान। सो फिर उसने क्या किया, ऑफिसर ने हाथ मिलाकर वो सुमॉन किसको दिया, सुल्तान को दे दिया। सुल्तान गियाजुद्दीन टूक इट विदाउट मेकिंग एनी कमेंट। अब सुल्तान गियाजुद्दीन ने वो सुमॉन लिए विदाउट मेकिंग एनी कमेंट, बिना कुछ बोले। ही रीड द सुमॉन एंड टोल्ड द ऑफिसर टू गो बैक टू द काजी। उन्होंने वो सुमॉन पढ़े और बोले कि आप ऑफिसर को कहे कि आप अभी वापस काजी के पास चले जाओ। ही अनाउंस्ड दैट ही वुड अपीयर इन द काजीज कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब वो दूसरे दिन कहाँ अपीयर होंगे, काजी के कोर्ट में। ओके, वो सुमन में उन्होंने लिख कर भेजे थे ना कि आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होना है। तो सुल्तान ने क्या करे कि वो एग्री हो गए कि मैं कल कोर्ट में आऊँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में सुल्तान क्या हुआ, रेडी हो गए, कहाँ पे जाने के लिए, काजी के पास जाने के लिए, कोर्ट में। ही हिड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रोब एंड सेंड आउट। अब सुल्तान ने क्या करे, जाने से पहले उन्होंने एक शार्प स्वॉर्ड मीन्स एक बड़ी सी, शार्प स्वॉर्ड मीन्स तलवार को अपने पास में रख लिया और फिर बाहर निकले। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद पीपल, एवरी वन वॉज एगर टू सी वॉट वुड हैपन। अब कोर्ट रूम में क्या था, कोर्ट रूम जो था वहाँ पे पैक्ड विद द पीपल मीन्स बहुत सारे लोगों के से भरा पड़ा था। एवरी वन वॉज एगर टू सी वॉट वुड हैपन, सबको बहुत मतलब सब एगर में थे, सब एक्साइटमेंट में थे कि क्या होने वाला है। द काजी एंटर्ड एंड टुक हिज प्लेस ऑन द हाई सीट ऑफ ऑनर। अब जो काजी की प्लेस थी, काजी आए और काजी अपनी प्लेस पे बैठे। एवरी वन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान बट द काजी डिड नॉट गेट अप। अब जब सुल्तान वहाँ पे कोर्ट में आए तो सारे जितने भी वहाँ पे लोग जमा हुए थे, बहुत सारे, सब उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जो काजी थे, काजी नहीं उठे, काजी वहीं पे बैठे थे। द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड द ट्रायल बिगेन। अब सुल्तान जो है वो डॉक्स में खड़े हुए, डॉक्स मीन्स कटहरे में कोर्ट के खड़े हुए, एंड द ट्रायल बिगेन मीन्स अब जो है स्टार्ट हो गया।
द विडो प्रेजेंट हर कंप्लेंट. द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान. सो विडो जो थी, वो जो विधवा थी, उसने अपनी कंप्लेंट रखी कि क्या हुआ, उसके सन का डेथ हो गई, राइट. सो द काजी नोट ऑल द एविडेंस. तो काजी ने क्या करे, सारे एविडेंस को लिए, सब चीज़ एड्रेस करे किस पे, सुल्तान पे. You are guilty of causing the death of the only son for this poor widow. According to the law, you must pay a fine for this offence. I order you to do that without delay. So अभी काजी ने क्या कहा, you are guilty of causing the death of the only son of this poor widow. तो आपको गिल्टी होना चाहिए. क्यों गिल्टी होना चाहिए? क्योंकि आपने इस विडो मीन्स ये विधवा के एक अकेला बेटा, ओनली सन मीन्स इकलौते बेटे को आपने मार दिया. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ मीन्स लॉ के हिसाब से यू मस्ट हैव टू पे अ फाइन. आपको लॉ के हिसाब से क्या पे करना है, फाइन पे करना है फॉर हिज ऑफेंस. आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले. सो काजी ने क्या कहा सुल्तान को कि मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आपको वो पे करना है विदाउट एनी डिले. ओके. द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज टू द विडो. सो सुल्तान ने क्या किया, ये जो जजमेंट थी उसे एक्सेप्ट करे एंड अपोलोजाइज टू द विडो. और अपोलोजाइज करे मीन्स वो जो विडो थी उसे सॉरी कहे. ही अरेंज टू पे द फाइन इमीजिएटली. और उन्होंने, सुल्तान ने फटाफट अपनी जो भी फाइन अरेंज पे करनी थी वो विडो को, वो अरेंज करे. द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉड होम टू द ऑफेंडर. सो विडो जो थी वो सेटिस्फाई हो गई कि जो फाइन है वो सब सही हुआ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में बराबर इंसाफ हुआ. When the case was over, the Qazi got up for his high seat of honor. Respectfully, he bowed the Sultan and requested him to take his seat. So जब केस ओवर हो गया, जब केस ख़त्म हो गया, सेटल हो गया सब, काजी क्या हुए, गॉट अप मीन्स काजी खड़े हुए फ्रॉम हिज हाई सीट ऑफ ऑनर. अपनी सीट पे से, ऑनर वाली सीट पे से अपने काजी उठे. रिस्पेक्टफुली ही बोड टू द सुल्तान. और रिस्पेक्टफुली वो क्या करे, बो करे मीन्स अपना सर झुकाए. किसके सामने, सुल्तान के सामने. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट. और रिक्वेस्ट किए किससे, सुल्तान से, कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ. द सुल्तान देन ड्रू द हिडन स्वॉर्ड फ्रॉम हिज रोब एंड टोल्ड द काजी, आई एम हैप्पी दैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी. सो सुल्तान क्या कहे, सुल्तान ने अपनी वो जो छुपा के लेकर आए थे स्वॉर्ड, तलवार, वो निकाले और काजी को बोले, आई एम हैप्पी दैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी. मैं खुश हुआ कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से सही निभाई, तुमने कोई नाइंसाफ़ी नहीं करे. यू डिड नॉट हेसिटेट टू पनिश मी, मतलब तुम मेरे को पनिश करने में डरे नहीं. अदरवाइज आई वुड हैव बी हेडेड योर विद दिस वर्ड. अगर आप मुझे सही इंसाफ नहीं करते वो विडो के साथ में, तो मैं क्या करता, आपका बी हेडेड यू विद दिस वर्ड मीन्स आपका सर काट देता. किससे, ये स्वॉर्ड से, ये तलवार से. द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर द क्यूशन वेयर द सुल्तान वॉज सीटेड एंड बॉट आउट अ वाइफ. सो काजी ने क्या किया, अब काजी ने पुट हिज हैंड अंडर द क्यूशन मीन्स काजी ने अपना हैंड क्यूशन के नीचे मीन्स वो तकिए के नीचे हाथ डाले. वेयर द सुल्तान वॉज सीटेड, जहाँ पे सुल्तान बैठे थे वहाँ पे तकिया था, वहाँ पे नीचे हाथ डाले. एंड बॉट आउट अ वाइप, और वहाँ से क्या निकाले, वाइप निकाले. वाइप मीन्स वॉट, चाबुक, क्या बोलते हैं, चाबुक, या जिससे मारते हैं ना, चाबुक, राइट. ही सेड, योर मेजेस्टी आई होप बिकॉज यू ओबेड द लॉर्ड. वो जो लेदर का रहता है ना बड़ा सा हैंडल के साथ में, वाइप, उससे उसने क्या कहा, ही सेडेड, योर मेजेस्टी आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबेड द लॉर्ड. अब काजी ने सुल्तान को रिप्लाई दिया कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये लॉ एंड ऑर्डर को बराबर फॉलो करे. अदरवाइज आई वुड हैव वाइप यू इन दिस कोर्ट. तो मैंने भी क्या करा था, छुपा के, अगर आप ये लॉ ऑर्डर को फॉलो नहीं करते सुल्तान, तो उन्होंने भी क्या करा था, वो जो लेदर का विप होता है जिससे लोगों को मारते हैं, वो मैंने रेडी रखा था आपके लिए. द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस द काजी. थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, ही सेड. सो अब सुल्तान क्या करे, वो खुश हो गए. थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी मीन्स हम दोनों ने हमारी ड्यूटी सही निभाए. एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन. सो वो कोर्ट रूम में जितने भी पीपल प्रेजेंट थे वो लोग क्या करे, प्रेस्ट करने लगे. किन दो टू ग्रेट मैन को प्रेस्ट करने लगे, काजी और सुल्तान को. क्यों प्रेस्ट करे, क्योंकि वो दोनों ने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली निभाए. ओके, प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को पूरा करें. ओके स्टूडेंट.